Hi everyone, I welcome you all to the official YouTube channel of Chandigarh Career Group. Guys, my name is Abhishek and today I am going to discuss with you the question paper of 2017, paper number 1 of physics itself. So let's start without any delay. Here is question number 1 on the screen and it is like, which one of the following device changes low voltage alternating current to high voltage alternating current and vice versa. What we have to do, we have to check this. Now see, in this question, we have to just tell the device which change low voltage to high voltage. And if you go through with the options, अगर आप ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे, वाइब्रेटर, मोटर, जनरेटर, these are not the three which will change low to high. So for this the correct one is option A, that is transformer. Correct option क्या है? Transformer. चलिए आगे बढ़ते हैं. An optical illusion which occurs mainly in desert during hot summer is based on the principle of. किस principle पे based होता है? So that is first of all let me tell you the phenomena is mirage. अगर मैं phenomena की बात करूं, so it is mirage, that optical illusion, and it is because of total internal reflection. It is because of total internal reflection. Total internal reflection की वजह से होता है. Total internal reflection की वजह से होता है. That is mirage. चलिए जी, let's move to the next one. At which place Earth magnetic field becomes zero? Earth का magnetic field zero कहां पर होता है? इक्वेटर पर. इक्वेटर पर अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट विल बिकम जीरो एट इक्वेटर. इक्वेटर पर जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाता है? वो जीरो हो जाता है. चलिए जी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. द स्पीड ऑफ अ कार ट्रेवलिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड इज लिस्टेड बिलो एट सक्सेसिव इंटरवल्स. सबसे पहले आप क्या करेंगे? एक डायग्राम बना लेंगे, एक टेबल बना लेंगे ताकि चीजें थोड़ी सी क्लियर रहें. ये आपने बना लिया है एक डायग्राम, एक टेबल. ये आपने बना ली है एक टेबल. लाइक दिस. देयर इज टाइम एंड देयर इज स्पीड. एक तरफ टाइम है, एक तरफ स्पीड है. तो 1 by 1 सबसे पहले मैं टाइम की बात करूं, 0, 1, 2, 3 और 4 एंड corresponding to time there is for 0, 0, 2, 4, 6, 8. If you plot the graph, it will always come to be straight line. 0, 2, 0, 0, 2, 4, 3, 6, 4, 8. सबसे पहला ऑप्शन कहता है विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. व्हाट इज एक्सेलरेशन? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. so that is v2 minus v1 upon t2 minus t1. I am taking these two. 8 minus 2 upon 4 minus 1, 6 by 3, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फर्स्ट वन इज करेक्ट. पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है. दूसरे ऑप्शन पे बात करते हैं. 16 मीटर इन 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में यू हैव s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. इनिशियली वेलोसिटी जीरो है तो इट विल बी s इज इक्वल टू हाफ. a is 2, t is how much? 4 second. Cancel. So this is 16 meter. Secondly, you can also find it by calculating the area. Area of this is length into breadth. It is of how many? 8.
into 4 1/2 area under velocity time graph. This is the white portion. It is a triangle, half into base into height. तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? This will become half into base into height, 2 2 जा 4, 16 मीटर, 16 मीटर. तो सेकंड भी ठीक है. थर्ड पे आइए, एवरेज स्पीड. जब एवरेज स्पीड निकालते हैं तो टोटल डिस्टेंस अपॉन हाउ मच, कितना जाएगा? टोटल टाइम, 4 मीटर पर सेकेंड. तो ये भी ठीक है. ऑल द 3 आर करेक्ट. ऑप्शन 1 इज करेक्ट. 1 2 and 3 all 3 are correct. Let's move to the next one. The speed of a body that has Mach number more than 1 is. Mach number क्या है? सबसे पहले you should know this. Mach number is basically, Mach number जो है हमारे पास, that is ratio speed of source, speed of source divided by speed of sound, speed of source divided by speed of sound, that is Mach number. अब अगर किसी का Mach number greater than 1 है, which means that speed of source, speed of source जो है वो ज्यादा है किससे? speed of sound से. speed of source जो है वो speed of sound से बहुत ज्यादा है. इसका मतलब दैट इज सुपरसोनिक. उसको बोलते हैं हम सुपरसोनिक. इफ द स्पीड ऑफ सोर्स इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द साउंड, देन वी कॉल इट एज सुपरसोनिक. उसको हम बोलते हैं सुपरसोनिक. चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Rutherford alpha particle scattering experiment was responsible for the discovery of nucleus. The main highlight or the main conclusion of the alpha particle scattering experiment was the light ray which is exactly passing through the center, it retrace its path. It means that there is something out there in the center, and the distance from which it will fall back, let's say from this much is the distance. It means this is, there are certain rays which pass like this. कुछ ऐसे पास हो गई थी, कुछ ऐसे पास हो गई थी, एंड कुछ रे यहां से वापस, right from this place. I call it as impact parameter. So there is something at the center of the nucleus where whole mass as well as the whole charge is concentrated. और अल्फा पार्टिकल की बीम थी, यहां से अगर वापस जा रही है तो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज पॉजिटिव है, तो मतलब ये जो सेंटर में जो भी था ये भी पॉजिटिव था. तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस की डिस्कवरी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? लेट मी गेट डायरेक्ट टू द पॉइंट. बी बिल्कुल भी सही नहीं है. बी, the amount of heat required to raise the temperature of a substance is called its specific heat capacity. No, that is only heat capacity. For specific heat capacity you have to mention the amount of the substance, that is unit gram या unit kilogram, तब जाकर के आप उसको specific heat capacity. This is heat capacity, not specific. ये गलत है. Amount of heat required to change a liquid to gaseous state without any change in temperature. टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए लेकिन फेस चेंज हो जाना चाहिए, उसको बोलते हैं हम लेटेंट हीट. लेटेंट हीट का एक ही एग्जांपल है, दैट इज दिस वेपोराइजेशन. दिस इज द करेक्ट. चलिए आगे बढ़ते हैं. दिस इज एक्चुअली यू हैव टू फाइंड आउट द फेज. आपको फेज देखना है, कौन सा फेज सही है. तो देखिए मैं कुछ बता देता हूं, ऑप्शंस यहां पे पूरे नहीं आ पा रहे, कुछ टेक्निकल फॉल्ट है. जो 0 पे फेस होगा वही 4 पर होगा, वही 8 पर होगा. पार्टिकल 0, 4 और 8 फेस सेम है. जो 1 पर होगा वही 5 पर होगा, वही 9 पर होगा. 1 5 9. जो 2 पर होगा वही 6 पर होगा, वही 10 पर होगा. 2 6 10. 2 6 10. तो जो भी ऑप्शन में इस हिसाब से मैच हो दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन. वो हमारे पास
करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। जी हाँ, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, मैच लिस्ट, देर आर सम ए एंड बी, देर आर टू कॉलम्स, वी हैव टू डू द करेक्ट मैचिंग। देखिए, लेट मी टेल यू वन बाय वन, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करना चाहूंगा ऑप्शन नंबर 1, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या है? हाइपरमेट्रोपिया इज फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस, दूर की चीजें दिख जाती हैं, नजदीक की नहीं दिखती हैं। इट इज करेक्टेड बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस। इमेज इज फॉर्म्ड आफ्टर रेटिना, रेटिना के बाद इमेज बनती है, हमें पहले बनानी है, रेस को कन्वर्ज करना पड़ेगा, तो कन्वेक्स लेंस। दूसरा, मायोपिया पे आ जाइए। मायोपिया, मायोपिया इज शॉर्ट साइटेडनेस। मायोपिया इज शॉर्ट साइटेडनेस। मायोपिया इज शॉर्ट साइटेडनेस, और इसके लिए वी रिक्वायर्ड कनकेव। यहां पे हमें जरूरत पड़ेगी कनकेव लेंस की। चलिए जी, तो हाइपरमेट्रोपिया कन्वेक्स, मायोपिया कनकेव। फर्स्ट का 4 है और सी का 1 है। देख लो, सी में 1 कहां रहा है? यहां रहा है। ए में 4 कहां रहा है? ये आ रहा है। ये करेक्ट ऑप्शन है। कैटरैक्ट हमेशा सर्जरी से ठीक होगा। ये एक और मैच, 2 का 2 बचेगा, सिंपल। सो दैट इज फर्स्ट ऑप्शन, पहला ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ सिंगल टर्न हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम। एक सर्कुलर कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस है 20 ओम। तो चलिए जी, ये है। अब दो डायमीटर के दो कॉर्नर्स के बीच का रेजिस्टेंस बताना है। ऐसे, ये डायमीटर है, ये दोनों पैरेलल में है। जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे तो आर इक्विवेलेंट इज R1 R2, R1 प्लस R2। जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे तो ऐसे हम उनको ऐड करेंगे, और यहां से आपके पास जो आएगा दैट विल बी विथ व्हाट इज दैट 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 10, 100। इट विल बी 100 अपॉन 20, तो कितना आ जाएगा? 5 ओम। करेक्ट वन इज 5 ओम। 5 ओम इज द करेक्ट वन। आगे बढ़ते हैं। इन अ सोलेनॉइड द करंट फ्लो थ्रू द वायर इज L एंड नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इज N। सबसे पहले लेट मी टेल यू, सोलेनॉइड जो है, सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होता है म्यू नॉट NI। मतलब कि B जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ टर्न्स के, B जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। दोनों में से एक भी चीज अगर बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। और ये इनसाइड सोलेनॉइड है, बाहर 0 होता है। तो उसने कहा है नंबर ऑफ टर्न्स को उसने क्या कर दिया? 2n। तो मैग्नेटिक फील्ड B डैश कितना आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ B। सिंपल, B ऑप्शन। आगे बढ़िए। Which one of the following statement is correct about the magnification of optical microscope? You should know the magnification formula for microscope. Microscope के लिए magnification formula होता है M is equals to V naught upon U naught 1 plus D by FE। अब सारा कुछ फोकल लेंथ के विद रिस्पेक्ट है। आई लेंस की फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आई लेंस की फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मैग्निफिकेशन कम होगा। अगर फोकल लेंथ किसकी? आई लेंस की क्या होगी? बढ़ेगी। आई लेंस की अगर फोकल लेंथ बढ़ेगी तो मैग्निफिकेशन कम हो जाएगा। The time period of a simple pendulum made using a thin copper wire of length L is capital T. Suppose the temperature of the room in which the simple pendulum is placed increased by 30 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है। 30 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है। टेम्परेचर बढ़ने पर जो लेंथ है
वो बढ़ती है L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और ये बहुत ही कम होता है 10⁻³ के आसपास। तो टेम्परेचर जो है, लेंथ जो है वो स्लाइटली बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन लेंथ। लेंथ थोड़ी सी बड़ी है तो सॉरी, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा है तो लेंथ भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज सेम यूनिट दैट ऑफ प्रेशर। अब इसको मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, बताने के लिए मैं डायरेक्ट बता सकता हूं, लेकिन नहीं, पहले प्रेशर की यूनिट कैलकुलेट करेंगे। डू नॉट गो फॉर पास्कल लाइक द बेसिक वन। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स इज व्हाट, न्यूटन, एरिया मीटर स्क्वायर, न्यूटन को ब्रेक करो, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, कितना, डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, यह आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये यूनिट है प्रेशर की, दैट इज द यूनिट ऑफ द प्रेशर। आपको यूनिट को ब्रेक करना पड़ेगा इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म, इनटू द एसआई पैरामीटर्स, लेंथ, मास, टाइम की फॉर्म में। सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम, सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम L, वो होता है mvr, m यानी कि किलोग्राम, v यानी कि मीटर पर सेकंड, दिस, तो ये आया है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। नो, दिस इज नॉट करेक्ट। स्ट्रेस, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, बिल्कुल हूबहू सेम है, तो स्ट्रेस विल बी द करेक्ट वन। स्ट्रेस विल बी द करेक्ट वन। फोर्स अपॉन एरिया जो फॉर्मूला इसका है वही इसका है। आगे चलते हैं। Which one of the following statement is correct with regard to the material of the electrical insulators? Insulators are those material which do not have free electrons, or else if they have, they are not able to move very easily. Eventually insulators के पास free electrons नहीं, तो अगर हैं तो वो आसानी से move नहीं कर सकते। तो this is B. Electron do not flow easily through them. Which one of the following physical quantity does not affect resistance of a cylindrical resistor? Resistance को क्या चीज अफेक्ट नहीं करती? दो बातें ध्यान से। सबसे पहले R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब ये जो रो एल अपॉन ए है ये नेचर ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल का जो भी नेचर है उस पर डिपेंड करता है। एल लेंथ है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तीन चीजें हैं आपके पास, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो किस पे डिपेंड नहीं करती? करंट पे। हालांकि कंफ्यूज मत होंगे आप लोग, क्योंकि ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू आई आर। इट मीन्स R शुड बी इक्वल टू V अपॉन I। बट रेजिस्टेंस नीदर डिपेंड ऑन वोल्टेज नॉर ऑन करंट, ना तो वोल्टेज पे डिपेंड करता है और ना ही करंट पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखिए अब, सपोज अ रॉड इज गिवन अ नेगेटिव चार्ज बाय रबिंग इट विद वूल, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दिस केस? नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर होता है, जो बॉडी चार्ज को एक्सेप्ट करती है वो नेगेटिवली चार्ज होती है, जो चार्ज को डोनेट करती है वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो यहां पे याद रखिए नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हुआ है वूल से रॉड की तरफ, रॉड नेगेटिव हो गई है, रॉड क्योंकि नेगेटिव हो गई है तो चार्ज जो ट्रांसफर हुआ है वो रोड से किसकी तरफ? वूल से रॉड की तरफ। वूल पॉजिटिवली चार्ज, रॉड नेगेटिवली। नेक्स्ट वन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन? इनमें से करेक्ट रिलेशन क्या है? किसके बीच? फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बीच। एक छोटी सी बात समझिए थोड़ा सा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी, इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, सो द टाइम पीरियड इज this upon this. Time period is circumference upon velocity. Velocity को मैं लिख सकता हूं ओमेगा आर, आर से आर कैंसिल, 2 पाई अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई अपॉन ओमेगा, और यहां से ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 पाई एफ। सिंपल, ध्यान से देख लीजिए, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ। बी ऑप्शन, ये गलत है, ये मत कर देना। आगे चलें। अ केल्विन थर्मामीटर एंड अ फारेनहाइट, दो थर्मामीटर है केल्विन और फारेनहाइट, सेम रीडिंग किस टेम्परेचर पे देंगे? डायरेक्ट बता दूं तो ये है, प्रूव कर देते हैं।
हमारे पास होता है x माइनस बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट, x माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू x माइनस फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। अब इधर भी टेम्परेचर x है, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट किसका, केल्विन 273, बॉइलिंग पॉइंट 373 माइनस 273 इज इक्वल टू x माइनस फ्रीजिंग पॉइंट 32, 212 माइनस 32, 212 माइनस 32 कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा x माइनस 273 अपॉन 100 इज इक्वल टू x माइनस 32 अपॉन 180, 25 जा 100, 29 जा 180। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे आप लोग वैल्यू आ जाएगी 574.25, ये वैल्यू आती है, लेकिन यहां पे डेसिमल नहीं है, सिर्फ 574 है, तो ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। If the potential difference applied to a X-ray tube is double while keeping the separation between them filament and the target as same, what will happen to cut off wavelength? देखिए मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है, हमारे पास एनर्जी होती है hc अपॉन लैम्डा एंड फ्रॉम कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होगा qv hc अपॉन लैम्डा ev hc अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा विल बी hc अपॉन ev नॉट, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v नॉट, v नॉट पे, ठीक है, सेपरेशन पे डिपेंड नहीं करती है। आपने क्या किया, पोटेंशियल को आपने क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो कट ऑफ वेवलेंथ हाफ हो जाएगी, कट ऑफ वेवलेंथ हाफ हो जाएगी। आगे बढ़े, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द रिलेशन, कौन सा इसमें से सही है, लास्ट वन, जी जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जी जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये बात आप याद रखेंगे, दिस वन, दिस इज द करेक्ट। Why it is difficult to measure the coefficient of expansion of a liquid than solid? When you heat liquid, you will require some container of solid in order to heat that, and when we heat both of them simultaneously, there is the expansion of solid also, not only liquid but solid also, so that's why it is difficult. It is difficult for us to measure the coefficient of expansion of liquid. So the correct one is D. D option ठीक है। आगे बढ़ते हैं। If the absolute refractive index of glass and water is 3/2 and 4/3 respectively, what will be the ratio of velocity? Velocity निकालनी है जी। Refractive index of water क्या होगा, speed of light in air to speed of light in water. Refractive index of glass क्या होगा, speed of light in air to speed of light in glass. तो हमें निकालना है velocity of light in glass and water, nw upon ng, c upon vw, c upon vg, c से c कैंसिल, vg upon vw, सिंपल। आपको क्या निकालना है, velocity of light in glass and water, nw कितना है, nw हमारे पास 4/3 है और ये 3/2 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8/9, डी ऑप्शन 8/9 आपके पास वैल्यू आ जाएगी, 8/9। चलिए आगे बढ़ते हैं। A positive charge plus q is placed at the center of a hollow metallic sphere of inner radius A, outer radius B. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट है। हमारे पास एक होलो सॉलिड स्फीयर है, अंदर की रेडियस A है, बाहर की रेडियस B है। अब थोड़ा ध्यान से समझेंगे, पॉजिटिव चार्ज दिया आपने उसको, यहां पॉजिटिव है तो यहां नेगेटिव आ जाएगा, किस वजह से, इंडक्शन की वजह से, यहां नेगेटिव आ जाएगा, यहां नेगेटिव है यहां पॉजिटिव आ जाएगा, इंडक्शन की वजह से पॉजिटिव आ जाएगा, और यहां पे फिर से नेगेटिव आ जाएगा। इस वाली रीजन में, इस वाली रीजन में, अंदर की रीजन में नेट चार्ज कितना है, +q -q, नेट चार्ज ही 0 है, तो किस बात का, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड R जब A और B के बीच में होगा वहां पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है,
दोबारा से देखो एक बार, फिर दोबारा से देखिए क्वेश्चन। ये है मेरे पास 2 स्फीयर, ठीक है। अच्छा, इसकी रेडियस है a, इसकी रेडियस है b, इसकी रेडियस है a, इसकी रेडियस है b। अब अगर आप यहां पर आपने पॉजिटिव चार्ज दिया है, अंदर वाले होलोस्फीयर को पॉजिटिव चार्ज दिया, तो यहां पे इंडक्शन की वजह से चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, यहां पे नेगेटिव आएगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव आएगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब नेट चार्ज इस रीजन में, मैंने आर रेडियस का एक गॉसियन सरफेस बनाया, आर रेडियस का एक गॉसियन सरफेस बनाया। अब देखो ना, आर ए से तो ज्यादा है लेकिन बी से छोटा है। गॉस लॉ क्या कहता है, ई डॉट डी ए इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू यानी कि नेट चार्ज। अब गॉसियन सरफेस में नेट चार्ज क्या है, 0 है, प्लस का भी है माइनस का भी है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। So that's all in this video. I hope all the questions have been clear to you. अगर नहीं है तो दोबारा देखिए और questions को समझिए, बहुत crucial है, बहुत आसानी से you are able to get maximum 80 to 90 marks. So with that, this is Abhishek signing off. See you in the next video. Till then, keep studying, keep working hard. Thank you so much. Jai Hind.